सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। हम हैं बेचैन तुमसे कहने को, हम हैं बेचैन तुमसे कहने को, हमसे बनती नहीं कि तुमसे कहें। बात ऐसी नहीं कि तुमसे कहें, बात ऐसी नहीं कि तुमसे कहें, यानी वैसी नहीं कि तुमसे कहें। बात ऐसी नहीं कि तुमसे कहें।
सका थी नहीं कि तुमसे कहें, लब तकाती नहीं कि तुमसे कहें, बात ऐसी नहीं कि तुमसे कहें। तुमसे मिलकर भी मुद्दा ना मिला, 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 राह मिलती नहीं कि तुमसे कहीं, राह मिलती नहीं कि तुमसे कहीं, राह मिलती नहीं कि तुमसे कहें, बात ऐसी नहीं कि तुमसे कहें। अपना अहवाल रख दिया सारा, अपना अहवाल रख दिया सारा, अपना रख दिया सारा, अपना अहवाल रख दिया सारा, शर्त रखी नहीं कि तुमसे कहें, शर्त रखी नहीं कि तुमसे कहें, शर्त रखी नहीं कि तुमसे कहें, बात ऐसी नहीं कि तुमसे कहें। अब खामोशी ही ज़ेब देती है, अब खामोशी ज़ेब देती है, अब खामोशी ज़ेब देती है, अब खामोशी ज़ेब देती है,
बात अदी, ये बात अदी, ये बात अदी, तुमसे क्यों कर कहे ये बात अदी, दिल को लगती नहीं कि तुमसे कहे, दिल को लगती नहीं कि तुमसे कहे, यानी वैसी नहीं कि तुमसे कहे, बात ऐसी नहीं कि तुमसे कहे, बात ऐसी नहीं कि तुमसे कहे। ਯਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ ਘੈਂਟ ਜੱਟ ਮਨ ਸਾਫ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਾ ਭਾਈ ਚਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂਤੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਛਾ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਤਾਜ ਜੋ ਪਹਾੜ ਟੁੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਪਦੇ ਆ ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਸਦਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਭਾਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਰਤਾਨੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਏ ਖਰਾਬੀ ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 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 ਆਪਾਂ ਹਾਏ ਖੂਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਰਾਵੀ ਸਤਲੁਜ ਚਨਾਬ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਮਾਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਆ ਖੁਰਾਕ ਫੁੱਲ ਹੈਲਥਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਮ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਹੋ ਗਵਾਰ ਵੇਖ ਲੋ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਵੈਲਥਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈਏ ਨਾਲੇ ਸ਼ਕੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਾਈ ਡਿਊਟੀ ਥੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਚੜ ਆਉਣਾ ਮਿੱਤਰੋ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਈ ਅੱਖ ਨਾ ਮਿਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਈ ਕੁਹਾੜਵਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੈ ਜੇ ਖਹਿਣਾ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜੀਏ ਲੜਾਈ 2% ਸਾਡੀ ਵਾਧੂ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਭਗਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਆਹੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੇ ਟੋਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸਲਾ ਕਿਤਾਬੀ ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 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 ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ ਫਲਾ ਕੇ ਕੌੜੀਆਂ ਫੜਨਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਗਏ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਵਿਖ ਪੱਗ ਸਿਰੇ ਭੀੜ 'ਚ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੇ ਅਲੱਗ ਨੀਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਜੱਗ ਵੀਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਕੁਚੇਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਚਾਦਰੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਢੇਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਚੜਦਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਏ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਗੀਤ ਟੱਫੜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੱਲ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਆਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰੀਸ ਕਰਨੇ ਲਈ ਬਾਲਿਆਂ 'ਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਾਦਾ ਬੱਚੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਕਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟ ਨੇ ਪਾਵਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਪੀ ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 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 ਆਪਾਂ ਹਾਏ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ 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 ਹਾਏ ढोलन मेरे घर आवे ढोलन मेरे घर आवे सोना मीना मरी तेरी करया ढोलन मेरे घर आवे ढोलन मेरे घर
आवेंगे रोलन मेरे घर रोलन मेरे घर आवे रोलन मेरे मुगरी का तमा मुगरी का तमरी मुगरी का या तमा मुगरी का मुगरी का घर आवे रोलन मेरे घर रोलन मेरे रोलन मेरे घर मिलॉर्ड, इंसान की जिंदगी कोई खिलौना नहीं कि जब चाहा तोड़ा फोड़ा और फेंक दिया। खुदकुशी एक मजमूम है जिसे न सिर्फ सोसाइटी ने बल्कि मजहब ने भी नाजायज करार दिया। मिलॉर्ड, मुजरिम की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी जरूर थी, लेकिन महज मुस्ताद, इसलिए उसे ये हक न था कि वो जब चाहता उस जिंदगी को खत्म कर लेता। मिलॉर्ड, जिंदगी मजमुआ है मुश्किलात और हादिसात। हमें चाहिए कि उन सब का मर्दाना वार मुकाबला करें। मैं ये मानता हूँ कि हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। बजा इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं साहब, मगर माफ फरमाइएगा आप। अरे साहब, शर्मिंदा करते हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि बेवक्त तकलीफ दे रहा हूँ। मगर जनाब, इस वक्त 8 बज चुके हैं, मेरा मुलाकात करने और मशवरा देने का वक्त खत्म हो चुका है। इस वक्त मैं एक जरूरी मुकदमे की बहस तैयार कर रहा हूँ। आप सुबह तशरीफ लाएं तो बेहतर हो। वकील साहब, इस बेवक्त हाजिर होने का मुझे खुद एहसास है और मैं इसकी माफी मांग चुका हूँ। ये तो वजह है, लेकिन 4 दिन वकील साहब, मौत और जिंदगी का सवाल है। अगर मामला अहम है तो फिर मैं हाजिर। बात यह है साहब, मेरा ख्याल है अगर आपके करीब आ जाऊं तो बेहतर होगा। आप इत्मीनान रखिए, इस वक्त मैं अकेला, मुंशी और क्लर्क सब घर जाते हैं। आपको अकेले डर नहीं मालूम होता? डर तो यानी आपने मुझे कोई बच्चा समझा और फिर यहाँ डर की बात ही क्या? अरे साहब, क्या फरमाते हैं आप? ये जगह और माहौल तो किसी कत्ल के लिए इतना मौसू और कामयाब मालूम होता है कि मैं कुछ अर्ज नहीं करती। मालूम होता है आप परेशान होने के अलावा कुछ खौफजदा। मैं मैं और खौफजदा, ये भी खूबी नहीं। सिगरेट पीजिएगा? शुक्रिया साहब, ये खतरनाक चीज तो मुझसे दूर ही रखिए। सिगरेट और खतरनाक, ये कैसे? अरे साहब, दुनिया जानती है कि सिगरेट के तंबाकू में निकोटीन होता है और निकोटीन जहर। मुझे सिगरेट पीते हुए सारी उम्र गुजर गई, लेकिन आज तक कभी खांसी की भी शिकायत नहीं हुई। ये महज इत्तफाक समझिए, लेकिन खतरा बरहक है और खुद बकौल आपके हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के जंगल में फंसे रहते हैं। खैर, आप इसकी फिक्र ना करें और ये फरमाइए जनाब, मैं यकीन के साथ करता हूँ कि इस निकोटीन का रफ्ता रफ्ता इतना खौफनाक असर हो सकता है कि इंसान बैठे बैठे यकलक दिल की हरकत बंद हो जाने से मर सकता है। यानी यह मुमकिन है कि खुदा न करे आपकी इसी वक्त इसी कमरे में मौत वाक़ा हो जाए। मेरी मौत? जनाब, वक्त काफी हो चुका है और मुझे बहुत जरूरी बहस तैयार करनी। बेहतर होगा कि आप मगर जनाब जरा इधर देखिए, क्या है ये? एक मामूली सी शीशी जिसमें लाल रंग का प्याली। जी हाँ, मगर आपका काम भी तो साहब, अगर इस शीशी का खौफ किसी तरह इत्तफाकन खुल जाए, और हजरत ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है, ये शीशी मेरे हाथ से गिरकर टूट जाए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर किसी तरह ये खौफ खुल जाए तो यकीन मानिएगा इस दुनिया में आप 1 दर्जन से ज्यादा सांस न ले सकेंगे। लेकिन इतनी खौफनाक चीज आपने जेब में क्यों रखी है? मतलब ये है साहब कि आपका ये फरमाना हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं,
हाय 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 हाय, बिल्कुल 52 तोले पाव रत्ती की बात कही आपने। बजा फरमाया, लेकिन देखिए क्या फरमाया साहब, बस यूं कहिए कि हर अक्लमंद शख्स का ये ईमान होना चाहिए कि जिंदगी बाद में और मौत पहले। देखिए साहब, अब 10:15 बज चुके हैं और मुझे कहते हैं, और आप अभी तक इस दफ्तर में तनहा बैठे काम कर रहे हैं, ये कुछ कम खतरनाक बात है। बिल्ला, मैं 12 बरस से इसी दफ्तर में रात के वक्त काम कर रहा हूँ। हो सकता है, हो सकता है, मगर मगर जनाब फर्ज कीजिए कि मैं कोई खूनी हूँ, कोई खौफनाक कातिल जिसका काम सिर्फ इंसानी खून से खेलना हो, और मैं आपको यहाँ सिर्फ कत्ल करने की खातिर आया हूँ। आप मगर साहब, आप तो शरीफ आदमी हैं, आप कत्ल मुझे कत्ल जी हाँ, बकौल खुदा के कि हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है, मगर ये पिस्तौल, आपके पास तो पिस्तौल है, आपने ये पिस्तौल क्यों निकाल लिया? अरे कीजिए कि मैं यकदम पागल हो गया हूँ और मेरे शराबशुदा दिमाग में ये बात किसी तरह जम गई हो कि आपको कत्ल कर दिया जाए, तब मगर आप तो मुझसे ज्यादा अक्लमंद आदमी है, आप पागल कैसे हो सकते हैं साहब? कितना दर्दनाक मंजर होता है जब कोई औरत बेवा हो जाती और यतीम बच्चे दर दर की ठोकरें खाते थे। मैं समझता हूँ कि इंसान को मरने से पहले अपनी बीवी और बच्चों के लिए माकूल इंतजाम कर देना चाहिए ताकि इत्मीनान की मौत मर सके। अरे साहब, आप जानिए आजकल आमदनी करीब और अखराजात बेतहाशा है, तो बचाए तो क्यों कर बचाए नहीं साहब। यहाँ मुझे आपके खिलाफ बचाने की नीयत होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो हम अपनी जिंदगी का बीमा करा सकते हैं। हाँ, बीमा वाकई बड़ी करामत चीज है। मेरा खुद ख्याल है कि अपनी जिंदगी का बीमा करा लूं। अरे साहब, आपने अभी तक अपना बीमा नहीं करा? जी नहीं, लेकिन अब जल्द ख्याल है। तो फिर देर क्या है? दे लीजिए फॉर्म। कौन? मैं इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूँ और ये इसका फॉर्म। मिलॉर्ड, इंसान की जिंदगी कोई खिलौना नहीं कि जब चाहा तोड़ा फोड़ा और फेंक दिया। खुदकुशी एक मजमूम है जिसे न सिर्फ सोसाइटी ने बल्कि मजहब ने भी नाजायज करार दिया। मिलॉर्ड, मुजरिम की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी जरूर थी, लेकिन महज मुस्ताद, इसलिए उसे ये हक न था कि वो जब चाहता उस जिंदगी को खत्म कर लेता। मिलॉर्ड, जिंदगी मजमुआ है मुश्किलात और हादिसात। हमें चाहिए कि उन सब का मर्दाना वार मुकाबला करें। मैं ये मानता हूँ कि हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। बजा, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं साहब, मगर माफ फरमाइएगा आप। अरे साहब, शर्मिंदा करते हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि बेवक्त तकलीफ दे रहा हूँ। मगर जनाब, इस वक्त 8 बज चुके हैं, मेरा मुलाकात करने और मशवरा देने का वक्त खत्म हो चुका है। इस वक्त मैं एक जरूरी मुकदमे की बहस तैयार कर रहा हूँ, आप सुबह तशरीफ लाएं तो बेहतर हो। वकील साहब, इस बेवक्त हाजिर होने का मुझे खुद एहसास है और मैं इसकी माफी मांग चुका हूँ। ये तो वजह है, लेकिन वकील साहब, मौत और जिंदगी का सवाल है। अगर मामला अहम है तो फिर मैं हाजिर। बात यह है साहब, मेरा ख्याल है अगर आपके करीब आ जाऊं तो बेहतर होगा। आप इत्मीनान रखिए, इस वक्त मैं अकेला, मुंशी और क्लर्क सब घर जाते हैं। आपको अकेले डर नहीं मालूम होता? डर तो यानी आपने मुझे कोई बच्चा समझा और फिर यहाँ डर की बात ही क्या? अरे साहब, क्या फरमाते हैं आप? ये जगह और माहौल तो किसी कत्ल के लिए इतना मौसू और कामयाब मालूम होता है कि मैं कुछ अर्ज नहीं करती। मालूम होता है आप परेशान होने के अलावा कुछ खौफजदा। मैं मैं और खौफजदा, ये भी खूबी नहीं। सिगरेट पीजिएगा? शुक्रिया साहब, ये खतरनाक चीज तो मुझसे दूर ही रखिए। सिगरेट और खतरनाक, ये कैसे? अरे साहब, दुनिया जानती है कि सिगरेट के तंबाकू में निकोटीन होता है और निकोटीन जहर। मुझे सिगरेट पीते हुए सारी उम्र गुजर गई, लेकिन आज तक कभी खांसी की भी शिकायत नहीं हुई। ये महज इत्तफाक समझिए, लेकिन खतरा बरहक है और खुद बकौल आपके हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के जंगल में फंसे रहते हैं। खैर, आप इसकी फिक्र ना करें और ये फरमाइए जनाब, मैं यकीन के साथ करता हूँ कि इस निकोटीन का रफ्ता रफ्ता इतना खौफनाक असर हो सकता है कि इंसान बैठे बैठे यकलक दिल की हरकत बंद हो जाने से मर सकता है। यानी यह मुमकिन है कि खुदा न करे आपकी इसी वक्त इसी कमरे में मौत वाक़ा हो जाए। मेरी मौत? जनाब, वक्त काफी हो चुका है और मुझे बहुत जरूरी बहस तैयार करनी। बेहतर होगा कि आप। मगर जनाब, जरा इधर देखिए, क्या है ये?
एक मामूली सी शीशी जिसमें लाल रंग का प्याली। जी हाँ, मगर आपका काम भी तो साहब, अगर इस शीशी का कॉप किसी तरह इत्तफाकन खुल जाए, और हजरत ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है, ये शीशी मेरे हाथ से गिरकर टूट जाए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर किसी तरह ये कॉप खुल जाए तो यकीन मानिएगा इस दुनिया में आप 1 दर्जन से ज्यादा सांस न ले सकेंगे। लेकिन इतनी खौफनाक चीज आपने जेब में क्यों रखी है? मतलब ये है साहब कि आपका ये फरमाना, हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। हाय 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 हाय, बिल्कुल 52 तोले पाव रत्ती की बात कही आपने, बजा फरमाया। लेकिन देखिए क्या फरमाया साहब, बस यूं कहिए कि हर अक्लमंद शख्स का ये ईमान होना चाहिए कि जिंदगी बाद में और मौत पहले। देखिए साहब, अब 10:15 बज चुके हैं और मुझे कहते हैं, और आप अभी तक इस दफ्तर में तनहा बैठे काम कर रहे हैं, ये कुछ कम खतरनाक बात है। बिल्ला, मैं 12 बरस से इसी दफ्तर में रात के वक्त काम कर रहा हूँ। हो सकता है, मगर जनाब फर्ज कीजिए कि मैं कोई खूनी हूँ, कोई खौफनाक कातिल जिसका काम सिर्फ इंसानी खून से खेलना हो, और मैं आपको यहाँ सिर्फ कत्ल करने की खातिर आया हूँ। मगर साहब, आप तो शरीफ आदमी हैं, आप मुझे जी हाँ, बकौल खुदा के कि हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। मगर ये पिस्तौल आपके पास तो पिस्तौल है, आपने ये पिस्तौल क्यों निकाल लिया? अरे कीजिए कि मैं यकदम पागल हो गया हूँ और मेरे शराबशुदा दिमाग में ये बात किसी तरह जम गई हो कि आपको कत्ल कर दिया जाए। तब मगर आप तो मुझसे ज्यादा अक्लमंद आदमी है, आप पागल कैसे हो सकते हैं साहब? कितना दर्दनाक मंजर होता है जब कोई औरत बेवा हो जाती और यतीम बच्चे दर दर की ठोकरें खाते थे। मैं समझता हूँ कि इंसान को मरने से पहले अपनी बीवी और बच्चों के लिए माकूल इंतजाम कर देना चाहिए ताकि इत्मीनान की मौत मर सके। अरे साहब, आप जानिए आजकल आमदनी करीब अखराजात बेतहाशा है, तो बचाए तो क्यों बचाए नहीं साहब। यहाँ मुझे आपके खिलाफ बचाने की नीयत होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो हम अपनी जिंदगी का बीमा करा सकते हैं। हाँ, बीमा वाकई बड़ी करामत चीज है। मेरा खुद ख्याल है कि अपनी जिंदगी का बीमा करा लूं। अरे साहब, आपने अभी तक अपना बीमा नहीं करा? जी नहीं, लेकिन अब जल्द ख्याल है। तो फिर देर क्या है? दे लीजिए फॉर्म। कौन? मैं इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूँ और ये इसका फॉर्म। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में। बहारों की परी ये है तकदीर मेरी, जो भी समझा है मुझे वो इनायत है तेरी। ए बहारों की परी ये है तकदीर मेरी, जो भी समझा है मुझे वो इनायत है तेरी। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में।
तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में। मैंने सोचा भी न था मुझको मिल जाएगी तू, जैसे लहराए सबा ऐसे लहराएगी तू। मैंने सोचा भी न था मुझको मिल जाएगी तू, जैसे लहराए सबा ऐसे लहराएगी तू। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में। इस दुनिया में तरह तरह के सच हैं। अपने सच को फैलाने में न जाने यहाँ कितने खर्च हैं। कुछ सच कानूनी तो कुछ गैर कानूनी दर्ज है। आखिर है तो सब नजरिया ही। मेरा सिर्फ एक ही पक्ष है, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। और अब ना जाने किसका वक्त है। ट्रिगर वार्निंग आया दुश्मन सरहद पार। ट्रिगर वार्निंग है पुट हत्या इन हथियार। ट्रिगर वार्निंग मेरा नफरत ही व्यापार। ट्रिगर वार्निंग विदाउट वार्निंग होता जान। उसको लगता होगा दोस्त तू जिगरी पर नीयत खोट से भरी। मैं सगा हूँ किसी का नहीं, वो रखता दिल के पास मुझको। उसको होश ही नहीं पर उसका दोष भी नहीं। आखिर मैं दिखता तो औजार ही, हाथों का यार मुझे कहते वो हथियार भी। फौलादी ये शरीर हूँ मैं लोहे का आकार भी। खाता गोली 20 दिन की धमकी ये बदहाजमी की। उगल दूं जो खाना खाली बचेगी नहीं बात दिन की। मैं बंदूक हूँ चंडीगढ़ तू छाती जब मैं गुस्सा तेरा थूक दूं। या अब ताबूत तू मुझसे दोस्ती महंगी पड़ती बस नया सबूत तू। हाँ सबूत तू होगा घर का इकलौता ना लौटे like you used to। ताकत गंदा चस्का और मैं यम का रूप हूँ। मनहूस हूँ मैं तेरे लिए पल में अर्थी फूक दूं। पुराने खून से आती बू है जंगी, नए खून में भी उबाल है संभावना जंगी। जंगी थोड़ा वैसे मैं भी मुझ पे सूखे जंगी। मुझे उठाता उस पे आशा एक वतन और जंगी। पहने वर्दी वो तैनात चाहे गर्मी सर्दी। धरती से लगाव का एहसास तभी हुआ भर्ती करती इंतजार। उसकी पत्नी भरती मांग अपनी पड़ती पूजा पाठ। लंबी जान की वो मांग कर दी पर पड़े कुछ ना फर्क। मैं पढ़ता उसके कान भरे मैगजीन वो अलग। सूखा मेरा बैरल गला कैसे खाऊं तरस। मैं प्यासा बैठा बरसों से अब बरसों मेरी करश तभी। ट्रिगर वार्निंग आया दुश्मन सरहद पार। ट्रिगर वार्निंग आई पुट हत्या इन हथियार। ट्रिगर वार्निंग मेरा नफरत ही व्यापार। ट्रिगर वार्निंग विदाउट वार्निंग होता जाम में। अबे ये दब क्यों नहीं रहा? रुक रुक रुक। बोला था मैं सगा नहीं, ठीक था निशाना तेरा। ट्रिगर तुझसे दबा नहीं। तेरी होगी धर्म देश धरती मुझको परवाह नहीं। परवाने अनेक तेरे जैसे पर है चर्चा नहीं। लेता लेता पैसा तेरा तुझ पे करता खर्चा नहीं। बेटा अब तू परचम तेरे ऊपर और तू दिखता नहीं। दिखती तेरी असलियत तो शायद बिकता इतना नहीं। मैं हूँ तो एक औजार तेरे जैसे और मैं टिकता नहीं। मैं बंदूक हूँ चंडीगढ़ तू छाती जब मैं गुस्सा तेरा थूक दूं। अब ताबूत तू मुझसे दोस्ती महंगी पड़ती बस नया सबूत तू। हाँ सबूत तू होगा घर का इकलौता ना लौटे like you used to। ताकत गंदा चस्का और मैं यम का रूप हूँ। मनहूस हूँ मैं तेरे लिए पल में अर्थी फूक दूं। मैं जब बोलना चालू करूँ तो यहाँ बाकी सब मौन। ना मेरा कोई दुश्मन ना मेरा कोई मजहब ना मेरा कोई कौम। नो राइट और रॉन्ग मुझे बनाने वाला मेरे ऊपर वाला एक ही मौत का देवता। जो मुझे इस देश ही नहीं उस देश और उस देश को भी बेचता है तो मेरा एक ही धंधा हत्या हत्या।
जगत में ऊंचा है तू। इस दर से छोटा बड़ा कोई ना खाली गया, पर खाली है आंचल मेरा। जय भोलेनाथ जय हो प्रभु, सबसे जगत में ऊंचा है तू। जय भोलेनाथ जय हो प्रभु, सबसे जगत में ऊंचा है तू। इस दर से छोटा बड़ा कोई ना खाली गया, पर खाली है आंचल मेरा। जय भोलेनाथ जय हो प्रभु। हर दाग धुलता है यहाँ, धुलता यहाँ, हर भाग खुलता है यहाँ, खुलता यहाँ। और मैं भी उसी दर पे आया, बनती सबकी बिगड़ी जहाँ। ढूंढा ज़मीं आसमां, मेरा तो सब कुछ यहाँ, अब मैं और जाऊँ कहाँ। जय भोलेनाथ जय हो प्रभु, सबसे जगत में ऊंचा
यकीन है मगर ये यकीन